Hello, hello, hello. Hello everyone. So today we are going to start our computer class. How are you all? I think all are fine. Sorry I got late because due to some work in office I was there. Just I came. I think we have period once the class 5 minutes lost already. So now we are going to start our class. Five students are there online. Now three only. So let's start our class of computer. 5 minutes will wait for students. I think they came and departed again back here. Let them come. Then they will come. We will start our class soon. Within 5 minutes we will start our class. Just a minute. 5 minutes we can wait. So today we will start our second chapter of computer, input and output device. Input and output device. Hello, hello, जी हाँ बता कौन सी क्लास का सेकंड क्लास का वीडियो डाल देना वीडियो नहीं सर अभी क्या है कि रिवीजन स्टार्ट हो गया है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अभी उसको थोड़ा सा हमने होमवर्क पैटर्न पे डाल के और वो स्टार्ट करवा दिया है ना Only 5 students join the class. Input and output device. Today we will study about input and output device. Right all? मैं स्कूल हेलो स्कूल में स्कूल चार पाँच छः साढ़े पाँच छः अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ तो खरीद जाता ना होता नहीं है नहीं अब 4 दिन तो छुट्टी है आज ही रखते हैं ना कोई दिक्कत नहीं अभी रखवा तो आप गाड़ी शाम तक नहीं लेंगे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ले जाने की दिक्कत अच्छा हाँ तो एक बार उनसे बात करके देखो क्या बोलेगा मैं आपको लगाता हूँ हाँ एक आध घंटे बाद लगाऊंगा ऑनलाइन क्लास में बिजी हूँ एक घंटे में तो नंबर बोला था नंबर बोला नहीं लगा So students now will not receive any phone call, only study input and output device. Now I am going to start the class because many of the students are not ready to connect here. Dinesh, James, Dinesh. Good afternoon, Mantra Secretary. Good afternoon, Mok Rathod. Good afternoon, Park Jawar. Good afternoon, Anand Chan. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Hello. Good afternoon, Pranjal Ganda. Good afternoon to all. Kia Secretary,
So now we can start the class. There is no need of mask, but it is required. Here also I am wearing, and I hope that you should also wear mask regularly at home, outside. Don't go close to anyone. Maintain at least 2 meters distance, 3 feet or 2 meters, so that you can protect yourself, you can save yourself from this corona disease. So I hope all are safe and secure at home. So now I will start this chapter. I am going to start this input and output device. I will use some Hindi language also so that you can understand what I am teaching here. So key concept. First of all, you have to open your book, page number 11. Page number 11. Input and output device. So in input and output device, key concepts, what we'll study in this chapter. First is input, second is output, then processing device after process after input device, and at last output devices. So what is input and what is output and what is process? These three things we'll study in one time only. You can see downside one figure is given there, the one photograph is given in book. In that some bread slices given. Second, one toaster's picture is given. And third is crispy toast which we are eating in morning time. That is given there. So as an input, they used here slices of bread. Slices of bread means pieces. Bread's pieces, raw, which are bringing from market. That is not raw, but that we taken as an input device that we use in toaster. We fixed it in toaster. टोस्टर में जब उसको फिक्स किया गया है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, टोस्टर इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे उसमें हीट जनरेट होगी तो वो प्रोसेस करेगा और उस ब्रेड को वो किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट इन टोस्टर, राइट, इन टोस्ट, क्रिस्पी टोस्ट. थोड़ी देर में उसका चेंज हो जाएगा क्रिस्पी टोस्ट में. तो आपका इनपुट क्या हो गया, स्लाइस ब्रेड, है ना, स्लाइस ऑफ ब्रेड. आपका प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया आपका टोस्टर. एक मशीन जो दे रखी है वहाँ पे, इतना बड़ा एक मशीन है जिसके अंदर दो स्लाइस जो है वो वहाँ पे लगा दिए हैं उन्होंने, किस चीज के, ब्रेड के दो स्लाइस ऐसे फिक्स कर दिए हैं. जब उसको हीट मिला तो लास्ट में उसका आउटपुट के रूप में हमको क्या मिला है, क्रिस्पी टोस्ट. तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर. इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. But first input, then process, then output. So there are three things. I am writing it on board. You can see there. Input, process, and output. Right? So ये चीजें होती है. First is input, then process, and then output. So let's see. First one, input. What is input? The bread slice is input. Processor means process. Where it is going to process, it is going to process in that toaster. And when we got the crispy toast, that is our output. So these are input, आउटपुट एंड प्रोसेस. एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं. सारी मशीन्स जो होती है, जितनी भी मशीन्स हम ऑपरेट करते हैं, सारी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को मशीन्स में इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है. अंडरस्टैंड? इनपुट, फिर उसके बाद उससे मिलता है हमको प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट. किसी भी मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो यही होगा. पहले इनपुट दिया जाएगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा. फॉर एग्जांपल, आपने आटा पीसने की चक्की देखी होगी, फ्लोर मिल, है ना, फ्लोर मिल बोलते हैं उसको. जब वो फ्लोर मिल का यूज होता है तो सबसे पहले उसको इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिक जो है वो सप्लाई दिया जाता है, वो उसका इनपुट होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है वो इनपुट होता है. जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन किया जाता है, मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. अब उसके अंदर हम व्हीट डालते हैं, गेहूं पीसने के लिए.
ठीक है। गेहूं उसके अंदर जाता है, उसके दोनों पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक की हेल्प से प्रोसेस करते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे बोल सकते हैं। जब वो घूमते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, बीच में गेहूं आता है और घुसता जाता है, और इधर की साइड से हमको क्या क्या मिल जाता है, दूसरी साइड से फ्लोर। तो उसको क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक जो हुआ, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका इनपुट हो गया है, राइट। जो मशीन ने प्रोसेस की है वो उसका प्रोसेस हो गया है, और हीट से आपका क्या बन गया है, फ्लोर। तो फ्लोर जो निकला है हमारा वो है हमारा आउटपुट। या फिर ऐसा बोले कि इनपुट हमने दिया गेहूं, ठीक है, गेहूं से जाके और उसमें प्रोसेस हुई मशीन में इलेक्ट्रिक की हेल्प से, प्रोसेस के बाद वहां से निकला फ्लोर। तो जो फ्लोर निकला वो है आउटपुट। मशीन के अंदर जो काम हुआ है उसको बोलते हैं प्रोसेस, और जो हमारे पास आउटपुट निकला है उसको बोलते हैं, जो फ्लोर निकला है उसको बोलते हैं आउटपुट। अंडरस्टैंड ऑल? सो अब मुझे सेकंड एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फैन, फैन सभी के घर पे होता है, सब पे जो फैन घूमता है, सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट रहती है, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट देते हैं। इनपुट के रूप में क्या जाता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। अब जैसे ही करंट उसके अंदर जाता है तो करंट जो है उसमें मशीनरी लगी रहती है, करंट जो है वो उसके पार्ट्स के अंदर जाता है ना, रोटर वगैरह, बेरिंग, कॉइल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे ही वो करंट मिलता है तो वो घूमने लगता है अंदर से, और जैसे ही घूमता है तो उसकी पंखियाँ घूमती है फैन, और आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलती है, एयर। तो किसी भी हर एक मशीन में इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, फिर उसके अंदर प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद फिर उसका आउटपुट निकलता है। कंप्यूटर भी एक ऐसी ही मशीन है, कंप्यूटर इज ऑल्सो सेम मशीन इन विच वी आर गेटिंग, वी हैव टू गिव सम इनपुट एज इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन के रूप में, या फिर किसी कमांड के रूप में हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, और फिर उसके बाद वहां से निकलता है हमारा प्रोसेस होने के बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, और उसके बाद निकलता है हमारा आउटपुट। ठीक है। फिर एक एग्जांपल में देता हूँ आपका, फोर व्हीलर या टू व्हीलर। ठीक है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर को चलाने के लिए, या ट्रक, बस, जो भी आप व्हीकल्स देखते हैं उसको चलाने के लिए उसके अंदर फ्यूल डाला जाता है। फ्यूल एज अ पेट्रोल और डीजल। यहाँ पे हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कार में हमने पेट्रोल डाला, पेट्रोल के बाद जब हम सेल्फ लेते हैं तो उससे गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो फ्यूल जो है वो कहाँ जाता है, इंजन के अंदर। इंजन लगा हुआ रहता है, इंजन उसका प्रोसेसर रहता है ना। वहां पर पूरी गाड़ी को चलने की प्रोसेस होती है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो वो मोमेंट देता है व्हील्स को, जो उसके पहिए लगे रहते हैं, व्हील लगे रहते हैं, उसको मोमेंट देता है। जैसे मोमेंट देता है तो हमारी कार आगे चलने लगती है। तो दिस इज अवर आउटपुट। वो आउटपुट कैसे मिलता है हमको, व्हील के जरिए हम एक प्लेस से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, या हमारी कार जो है वो चलने लगती है। तो इनपुट क्या हुआ, पेट्रोल, आउटपुट क्या हुआ, कार का मूवमेंट। प्रोसेस कहाँ पे हुई, इंजन के अंदर। तो प्रोसेसर क्या हो गया, इंजन। अब मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। किसी भी मशीन में इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीजें होती हैं। नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद इस चीज को रीडिंग करने की रिक्वायरमेंट है, बट देन ऑल्सो आई एम रीडिंग हियर फर्स्ट लाइन ऑनवर्ड्स। लुक एट द sequence of the pictures given below. In the picture given above, you see that making crispy toast involves three different steps. जैसा कि मैंने बताया, स्लाइस ऑफ ब्रेड आर पुट इनसाइड द टोस्टर। टोस्टर के अंदर स्लाइस ऑफ ब्रेड को रखा, इट इज कॉल्ड इनपुट। स्लाइस ऑफ ब्रेड गेट हीटेड एंड बेक्ड इन द टोस्टर। टोस्टर में ये बेक्ड और हीटेड हो गया। अब थर्ड, crispy toast are ready. These three steps can be separated as input. ये तीन स्टेप्स को हम तीन चीजों में सेपरेट कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट। स्लाइस ऑफ ब्रेड्स आर द इनपुट।
As I told, the slice of bread is an input. Input is the data that shall be used to give us the necessary results. Okay. Processing, processing के बारे में बात करेंगे तो means processing means doing a task which gives a result. In the above examples, heating and baking is the processing. ठीक है, हीटिंग और बेकिंग जो होती है टोस्ट की, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है. आउटपुट क्या निकला? इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द इनपुट. हियर यू गेट द क्रिस्पी टोस्ट एज एन आउटपुट. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज, पेज नंबर 12. एज आई टोल्ड, ऑल मशीन्स डू देयर वर्क इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में कोई भी मशीन काम करती है. पहला होता है इनपुट, सेकंड वाला आपका हो गया प्रोसेसिंग, और थर्ड हो गया आउटपुट. So like any other machine, a computer also performs the basic functions of input, processing and output. कंप्यूटर भी इसी प्रोसेस के ऊपर काम करता है जिसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, इनपुट के बाद आपकी रिक्वायरमेंट रहती है प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलता है आउटपुट. कंप्यूटर में भी यही होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द इनपुट. व्हाट इज द इनपुट? The data and instruction that we give to a computer for processing are called input. कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट अभी सभी के घर पे होता है ना. किसी के मम्मी पापा का रिक्वायरमेंट रहता है, पापा प्रोफेशनली लैपटॉप यूज करते हैं, कभी किसी का पीसी रहता है, सभी के पास होता है, राइट. गुड आफ्टरनून एवरीबडी who joined just good afternoon. So सभी के पास आजकल सभी घरों में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा. तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द डिवाइसेस. सभी ने देख रखी है. थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे कितनी बार लैब में भी जा चुके हैं स्कूल में, जिनको दिखाया गया है कि बेटा हाउ टू मीन्स ऑपरेट द कंप्यूटर, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सभी को पता है ना. कीबोर्ड किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर बहुत सारी कीज रहती है, जिस पर हम टाइपिंग करते हैं, दैट इज कीबोर्ड. माउस, माउस मैं भी दिखाता हूँ आपको. दिस इज कॉल्ड अ माउस. जो ऑप्टिकल माउस है ना, इसमें मोर देन 2 स्विच हो सकते हैं. एक स्क्रॉल करने का रहता है, इधर राइट और लेफ्ट क्लिक करने के लिए रहता है. इससे कुछ ऑप्शन होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस. जब मैं इसका मूवमेंट करता हूँ तो कर्सर जो है मूव होता है. ऐसे करके मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर नहीं, डेस्क के ऊपर रख के करते हैं. बट आई वांट टू शो यू, दैट्स व्हाई मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है. तो ये आपकी एक इनपुट डिवाइस होगी. ठीक है, डिवाइस के बारे में बात नहीं कर रहा. इनपुट कैसे दिया जाता है या किस फॉर्म में दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन के बारे में पहले बात करूं कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में बच्चों को बहुत सी बार इंस्ट्रक्ट करता हूं कि बेटा प्लीज राइट इन योर कॉपी. तो बच्चे उसको राइट करने लग जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. और जो वो राइट करते हैं वो क्या है? दैट इज डेटा. ठीक है, उसी को कहा जाता है डेटा. तो इंस्ट्रक्शन है डेटा. या फिर मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया, बहुत सारी चीजें राइट करके दे दी, 5 क्वेश्चन आंसर राइट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड डेटा, है ना. और अगर मैंने ओरली बोल दिया कि ओपन योर पेज नंबर 15 एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. तो कंप्यूटर को भी ऐसी इंस्ट्रक्शन देना पड़ती है, बट ओरल नहीं दे सकते. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड से, माउस के थ्रू, टाइप करके, या फिर माउस से क्लिक करके, कोई भी ऑप्शन के रूप में हम उसको इनपुट देते हैं. ठीक है. तो दिस अंडरस्टैंड ऑल व्हाट इज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड इनपुट. इनपुट समझ में आ गया सभी को? व्हाट इज द इनपुट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट. उसके नीचे आप देखेंगे पेज नंबर 12 पे प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस? आई विल नॉट शो यू द बुक. बुक आपको परचेस करना है मार्केट से, या फिर मैं जो समझा रहा हूँ वो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को विदाउट बुक ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड. बट जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा वर्क करने के लिए, उस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है विदाउट बुक. तो यू मस्ट परचेस द बुक. ओके ऑल. सो नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. प्रोसेस क्या होता है? किसी भी काम की प्रोसेस, है ना. हम
स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे टीचर उनको पढ़ाते हैं, दैट इज अवर इनपुट। ठीक है, फिर हम उसको पढ़ते हैं, उसको लर्न करके माइंड में फिक्स करते हैं। ठीक है, पूरे ईयर तक वो प्रोसेस चलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। काम चलता है उस चीज के ऊपर। फिर उसके बाद एक लास्ट एग्जाम होती है ना। एग्जाम में आप लिख के आते हो, बहुत भी प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद टीचर कॉपी चेक करके और उसका आउटपुट देते हैं कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है नहीं की है, आपका रिजल्ट निकलता है, दैट इज आउटपुट। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस हो गया आपका पूरा स्टडी, इतना सारा पढ़ाई करना पूरे साल भर तक, तो वो प्रोसेस आपके माइंड में चला। ऐसे ही माइंड के अलावा कंप्यूटर के अंदर होता है सीपीयू। क्या होता है कंप्यूटर में? सीपीयू। उस सीपीयू के अंदर प्रोसेस चलती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इन फुल फॉर्म वी आर टेलिंग इट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। ये एक बॉक्स के जैसा होता है, ये इस तरह से बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिवाइस और स्विच लगे रहते हैं, ये यूनिटी ट्रैक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पर बीच स्टार्ट का, ऐसे कुछ डिजाइनर लाइट्स, टाइम स्विच, तो ऐसा होता है सीपीयू। ये होता है आपका सीपीयू। इस पी से मतलब होता है प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेसिंग? दिस पीस मीनिंग इज प्रोसेसिंग। सी का मतलब होता है सेंट्रल, यू का मतलब होता है यूनिट। Understand all? CPU means a central processing unit. Understand? What is CPU? Central processing unit. Understand all? तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? कंप्यूटर की प्रोसेस होती है बॉक्स के अंदर। कीबोर्ड होता है, इस टाइप से कीबोर्ड बना हुआ है, बहुत सारी कीज होती है उसके ऊपर। जब मैं रफली अभी आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। ओके, सर इस टाइप से कीबोर्ड होता है। ये कीबोर्ड और सारी चीजें किससे कनेक्ट होती है? एक माउस जो होता है, माउस भी किससे कनेक्ट होता है? सर तो प्लीज, तो ये सारी चीजें, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड माउस, ये सारी चीजें इसी से। आपका मॉनिटर हुआ, मॉनिटर भी रहता है आपके पास, तो मॉनिटर भी किससे कनेक्ट रहता है? मॉनिटर भी केबल क्लास से कनेक्ट रहती है। तो जितने भी डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीजें लगी रहती है, वो सारी की सारी किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये केंद्र बिंदु है या सेंटर है, किसी चीज का सेंटर है, हर चीज जाके कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? इसमें। तो इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों को मैं इतना डीप में इसलिए स्टडी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, दैट द रीजन इज ओनली वन। आप लोगों को इतना डीप में स्टडी करवाने का रीजन ये है कि यू आर एट प्रेजेंट नॉट अवेयर विद दिस कंप्यूटर। आप लोगों को, बहुत से बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा। अब स्टार्टिंग में धीरे धीरे से आप फर्स्ट में थोड़ा सा पढ़ा, सेकंड में थोड़ा सा पढ़ा, थर्ड क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्ड ऑनवर्ड्स तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। बट दिस इज ड्यू टू कोविड-19, इस साल हम लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के लिए हम लोग क्लासेस रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहीं पे प्रैक्टिकली आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। सून आई विल प्रिपेयर वन स्लाइड शो। स्लाइड शो के जरिए भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइस होती है। तो नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस कहाँ पे होती है? प्रोसेस इसके अंदर ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ से आपने टाइप किया कुछ भी तो कहाँ पे दिखाई देगा? ये आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। हमने कुछ भी टाइप किया तो कहाँ जाएगा? इसके अंदर। यहाँ इसके अंदर क्या होती है? प्रोसेस, कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई सम दिया,
कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शन दी 12 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल। अब ये मेरा इनपुट था, क्या था मेरा इनपुट, जो मैंने इनपुट किया है 12 प्लस 4 प्लस 5, ये तीन नंबर को आप प्लस करो, ऐसा मैंने कंप्यूटर को बताया। ये तीन नंबर दिया और प्लस का साइन दिया कि 8। अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर जाएगी। कहाँ से टाइप करेंगे हम, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कीबोर्ड से कहाँ जाएगी, प्रोसेसर यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट में, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसका प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस मतलब इसका कैलकुलेशन होगा और फिर इसके बाद इसका आंसर निकलेगा। हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंप्यूटर भी कैलकुलेट करता है, इससे बड़े नंबर भी हम दे सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर के कैलकुलेशन भी कंप्यूटर कर देता है, वेरी इजी। ओके, तो ये एग्जांपल है, दिस इज योर इनपुट। फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस कहाँ पे चलेगी, प्रोसेस चलेगी सीपीयू के अंदर, और फिर आपका आउटपुट निकलेगा पीसी से। जब आपका इनपुट गया, प्रोसेस इसके अंदर चल रही है, प्रोसेस के बाद फिर इसके आउटपुट निकलेगा, फिर इससे आंसर निकलेगा 21। कंप्यूटर जो है वो आपको इसके आंसर सीपीयू के ऊपर देगा, दैट इज आवर आउटपुट। व्हाट इज दैट आउटपुट? अंडरस्टैंड ऑल? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है और आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज आपको सॉल्व इट, तो आप क्या करेंगे, ये रहा आपका, इसको आप डालोगे माइंड में। ठीक है, माइंड में डालने के बाद माइंड में आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप फिंगर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ये होगी आपकी प्रोसेस। और फिर उसके बाद आप इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज आउटपुट। Okay, understand all? So now let's start our output. In which I told the result process. The input given to the computer is processed in CPU. Raw data is changed into useful information by processing. So now we'll start about output. The result of processing is called output. Processing का जो result होता है उसको कहा जाता है output. That is called a आउटपुट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल करके बताया कि आउटपुट किसको कहते हैं, है ना। तो द इनपुट मींस आई, प्रोसेस मींस पी, एंड आउटपुट मींस ओ इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, आई पी ओ, आईपीओ साइकिल। आई से मतलब होता है इनपुट, ई से मतलब हुआ आपका प्रोसेस, और ओ से मतलब हुआ आपका आउटपुट। क्लियर हो? तो ये रहा आपका आईपीओ, है ना, आईपीओ साइकिल। ये कंप्यूटर के अंदर हम इसको यूज करते हैं, इस टर्म को आईपीओ साइकिल। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। Let us understand in it with the given example to calculate the sum of 5 numbers. First we input 5 number in computer which the computer shall process and give the output. ठीक है, इनपुट देखो यहाँ पे 102, 195, 237, 126 और 95 करके, और हमने सारे नंबर्स कंप्यूटर को दे दिए। बुक में दिया हुआ है, आप बुक में देखें, बुक में। फिर उसके बाद आपको प्रोसेसिंग में ये इनपुट हो गया, जो नंबर है ये 5 नंबर इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर ने उन सब नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपको दे दिया आउटपुट 755 इज द आउटपुट, है ना। So this is called a process or output process, input, process and processing and output. Now start, click and process. Define the following. Input. Define the following. So now start. Nilesh Secretary जी, yes, tomorrow भी कल भी online classes रहेगी। Rahul Jain sir, please remove your mask. Why? No, I can't. This means some teachers are also sitting in this room. I can't remove it. Sorry for that. No, I will remove. If I will not feel comfortable, then definitely I will remove it. Don't worry.
हाँ, next is check and proceed. Define the following. Input आपने देख लिया है, आउटपुट भी आपने देख लिया है. इसके दो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चेक एंड प्रोसीड. तो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू आफ्टर राइटिंग, डोंट वरी. नेक्स्ट इज input device. Next is input device. The device that are used. ठीक है, जहाँ हम इनपुट को फीड करते हैं, उन सभी चीजों को या उन सारे इक्विपमेंट्स को या सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस. ओके, उन सबको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस. Right on. So that is called all are called the input device. So called input device, for example, keyboard, mouse, joystick, scanner, web camera, barcode reader and microphone, etc. जिन चीज़ों से हमको आउटपुट मिलता है वो सारी चीज़ें इनपुट हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं इनपुट डिवाइस. जॉयस्टिक का नाम इसमें लिखा हुआ है. जॉयस्टिक इज यूज्ड टू joystick is used to give instruction to the computer as a for playing game. जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो गेम्स खेलने के लिए होता है, राइट. फिर उसके बाद आपका कीबोर्ड होता है, वो टाइपिंग करके और हम जो है उसके अंदर आप दे सकते हैं, टाइप करके और उसमें इनपुट दिया जा सकता है. माउस जो है, माउस का भी यूज कर सकते हैं हम, इनपुट देने के लिए माउस भी उसमें लाया जाता है. कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. स्कैनर, स्कैनर तो सभी लोग यूज कर रहे हैं आजकल पीडीएफ बनाने के लिए, राइट. ऐसा कैसा स्कैनर एज कंप्यूटर के अंदर भी होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता है और डॉक्यूमेंट जो है वो उसके अंदर स्कैन होकर और कंप्यूटर के प्रोसेसर में आकर प्रोसेसिंग करके हमको मिल जाता है. अंडरस्टैंड ऑल. सो आई थिंक द क्लास इज ओवर. मुझे ये इनपुट डिवाइस खत्म करके और बाकी का आपको नेक्स्ट क्लास में, कल और इसकी क्लास है, कल मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपका. जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे होता है, कंप्यूटर के ऊपर लगा सकते हैं इसको. मैंने मेरे फिंगर दिख रही होगी आपको, बहुत क्लोज चली गई बिल्कुल, है ना. सो ये आपका वेब कैम है, वेब कैमरा. और बारकोड रीडर, बारकोड रीडर आप शॉप पे जाते हैं कभी, शॉप पे जाएंगे तो आपको आजकल बड़ी बड़ी मॉल वगैरह रहते हैं, उसके अंदर एक बारकोड रीडर होता है, हाथ में मशीन रहती है जिससे कि वो प्रोडक्ट या आपके कपड़ों के ऊपर लगे हुए उसको स्कैन करते हैं ऐसे करके मशीन से, और आपको प्राइस जो रहती है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है. उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस रहती है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड बारकोड रीडर. माइक्रोफोन, जो हम कान में लगा के आवाजें सुनते हैं या फिर साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस. अब ये सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. टुडे इट वाज माय फर्स्ट क्लास, so maybe I took more time, and tomorrow onwards I will teach you very fastly and properly. I will explain you all the things. The mask is wet, that's why I am unable to breathe, that's why I am touching it again and again. So sorry for this disturbance. I think someone written also. Mr. Rahul Jain written here, sir, please remove your mask. So the conditions are very critical. In Kukshi, next 4 days lockdown is there around us. Everywhere corona is spreading. So I think we should protect ourselves by using mask as well as sanitizer, by keeping distance from others, and I hope you all will keep yourself carefully, protect yourself, stay at home and be safe. Thank you everybody. Tomorrow again we'll meet. Bye.